व्यू पॉइंट को मद्देनजर रखकर मैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुझे इनवाइट मिला तो मैंने जाने का फैसला किया था, क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके द्वारा मैं उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाने वाले जो एक प्रयास हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे सकता था। इसी प्रकार से मैं उनका हमारे प्रति क्या उनकी क्या हमारे प्रति ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में मैं जानकारी ले सकता था। जैसा दोस्तों याद है आपको कि मैं 4 बजे गया था, तो तकरीबन मेरे ख्याल में घंटे के आसपास हमारी बातचीत हुई। उसमें कई प्रकार के मुद्दे हुए, तो मैंने उन्हें क्राइम जो है जनरल, किस प्रकार से हम क्राइम कोई रजिस्ट्रेशन सच्चाई से कर रहे हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी। उसके अलावा मैंने उन्हें जानकारी दी कि किस प्रकार एक हमारा फर्ज होता है जब भी किसी हम केस की इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन एक न्याय संगत इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सच्चाई के बॉटम तक पहुंचा जा सके। उसके अलावा किस प्रकार से पुलिसिंग के अंदर में उनसे हमें मदद मिल सकती है, कुछ उस बारे में बातचीत हुई। तो इन विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए इतना ही आपको बताना काफी है, क्योंकि आप ये समझिए कि बहुत ही हमारी बात एक आत्मीय ढंग से और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है, और मुझे उनका व्यू पॉइंट समझने में सहायता मिली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो व्यू पॉइंट है उन्हें भी जो है के अंदर झांकने की उन्हें पूरी मैंने अपॉर्चुनिटी दी है। सर जो शुक्रिया। सर जो शब्द का इस्तेमाल किया था सर, उसके लेके पूरे दिल्ली पुलिस आहत है सर। आप सीएम से मिले होंगे सर, उन्होंने आके अपनी कोई सफाई दी है इसके लिए सर, गिल्टी फील करी है सर? नहीं, देखिए, मैंने उस इशू पे मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता ज्यादा, हालांकि वो मुद्दा जरूर आया। मैं अपने पुलिस के साथियों को सलाह दूंगा कि हमें जो है कभी भी अगर हमारे कोई बात इस प्रकार की कहता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, उस पर हमें विचलित नहीं होना, क्योंकि पुलिस में एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि दुख और तकलीफ को सहन कर सके। अगर कोई ऐसी बात भी कह दी जाए जो उन्हें बुरी लगे, उसको भी सहन करना होता है। आपने देखा होगा जो कई बार जब एजिटेशन होते हैं लोग कई बार कहते हैं, तो मैं तो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगा। Sir, there were a couple of points which were made by a press conference which was done by a Delhi minister right after your meeting got over, in which the 2 points which he made was Delhi police is being insensitive and is taking the case lightly of a girl who's been stabbed multiple times and she died of that, and also said that you refused to give in the details which were sought by the I am not sure of who has said this. This assertion has been made by Mr. Jain. Yes. After the meeting or before the meeting? After the meeting. Did he make any reference to the meeting, or he made it otherwise? No. So this is a statement he has given. But he says this was the perception, his perception. No, I think in that case it is my responsibility to make it very clear. Any incident of crime, we take it as a challenge and we take it as our responsibility to give justice to the victim, and particularly so if the crime is against any vulnerable section of the community. In this particular case, a woman was a victim, and question of her not being sensitive to this matter doesn't arise. For us, it was a challenge. Immediately after registration of the case, strenuous efforts were made. The culprits were arrested. Investigation has been taken up in the right earnest. Investigation is continuing, and I cannot reach any conclusions so fast. So if there is any, because certain things were discussed which I don't want to discuss, because if there are certain expectations which are not within the domain of law or which are
there because of lack of ignorance of certain procedures and processes. So those expectations obviously cannot be met, because responsibility of police is not only to provide succor to the victim, but it is also responsible in general to the society, and in particular to all those who come in contact with it during the course of an investigation, and that includes the accused or the suspects. Till the time investigating officer is not fully satisfied, investigating officer may not do certain things which may be expected by the the pressure of opinion at that particular point of time, because we owe duty to the rule of law, and the day police will start coming to pressure, it will be a very unfortunate day in the history of our nation, which is governed by rule of law. सर, इसी सवाल का जवाब हम हिंदी में चाहेंगे। आरोप यह है कि इसमें आप लोग बहुत तेजी और बहुत लाइटली इस केस को ले रहे हैं, जबकि ये बहुत जघन्य अपराध था उस महिला के खिलाफ, जबकि दिल्ली पुलिस ने रिमांड भी नहीं लिया इस पूरे मामले में। देखिए, जो दिल्ली पुलिस के कार्रवाई से, काम से जो लोग वाकिफ हैं, उन्हें मालूम है दिल्ली पुलिस हर अपराध को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेती है। हमारा प्रयास ये है कि कोई भी अपराध अनरजिस्टर्ड ना जाए, खास तौर पे जो अपराध वल्नरेबल सेक्शंस के खिलाफ होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर केस एक महिला के प्रति था। इमीडिएटली इसके अंदर में सशक्त इन्वेस्टिगेशन की गई और एक्यूज पर्सन्स को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जो व्यक्ति, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर आज मुझे कोई कहे कि क्या मेरा इस इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन निकला है, तो मैं किसी को भी अपना कंक्लूजन नहीं बता सकता कि जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं अपना कभी भी कंक्लूजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि माई एवरी असर्शन इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी नॉट ओनली बाय द विक्टिम but also by the accused, by the media, and eventually by the court and the defense and prosecution counsels. So I cannot afford to be wrong in coming to any. मैं इसलिए किसी भी कंक्लूजन को गलत नहीं निकाल सकता। और दूसरा, मेरी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल ऑफ लॉ में, कि मैं अपना जो काम करूं उससे मेरा काम न्याय संगत होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रॉमिस करता है, और वो प्रॉमिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखे हुए शब्द हैं हर समय मुझे गाइड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ मेरे किसी भी पुलिस अफसर से नाइंसाफी ना हो, चाहे वो विक्टिम है चाहे वो एक्यूज्ड है। तो इसलिए हमने जो भी काम किया है बिना किसी भय, बिना किसी द्वेष, बिना किसी रोष, बिना किसी, अगर मैं कहूं, एक्साइटमेंट के किया है, बहुत सोच समझ के रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए किया है। सर, इसमें कहा गया कि आपने रिमांड नहीं मांगी थी, एक्यूज की रिमांड नहीं मांगी थी, और कहीं ना कहीं इस पूरे इश्यू में आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा। ये किसने कहा है आपको? सत्येंद्र जैन ने ये बयान दिया। ये बयान अगर उन्होंने दिया, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था। ये मेरा प्रयास मैंने किया था उनको ये बात मीटिंग में समझाने का कि रिमांड किन हालात में ली जाती है और किन हालात में इसका लेना आवश्यक नहीं होता, और किन हालात में अगर रिमांड मांगी जाए तो वो एक इफ आई में से वो एक अनुचित जो है एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी होगी। तो इस केस के अंदर में चूंकि एक्यूज पकड़े गए थे, पकड़े जाने के बाद में जो उनसे हमें रिकवरी करनी थी वो हम रिकवरी कर चुके थे, उनसे जो बातचीत करनी थी हम बातचीत कर चुके थे, तो इसलिए रिमांड मांगना आवश्यक नहीं था, तो इसलिए रिमांड मांगी नहीं गई थी। मैं नहीं चाहता था इस बात को मैं इतना जिक्र करूं, क्योंकि ये इस प्रकार की जो अपेक्षाएं होती हैं वो कई बार क्योंकि कानून की बारीकियों का पूरी तरह से एप्रिसिएशन ना होने के कारण होती हैं, और मैं एज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ मेरा फर्ज बनता है कि जो मुझे
न्याय संगत लगता है मैं उसके हिसाब से कार्रवाई करूं, ना कि अगर मुझे किसी चीज से 4 लोगों से वाहवाही मिलेगी उस हिसाब से काम करूं। देखिए, मैंने कहा कि एक लंबा विचारों का आदान प्रदान था, तो उसमें कई बातें की गई होंगी। अब मैं हर बात को डिस्कस नहीं करना चाहता, तो ये बातें इररेलेवेंट हैं कि क्या साहब उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, इतना मैं बताना चाहूंगा। बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं पुलिस का एक जो सोसाइटी के अंदर में रोल है उसके बारे में अपना पक्ष जो है प्रस्तुत कर सकूं। आई एम श्योर उस चीज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय मिनिस्टर महोदय ने और उनके माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने जरूर उसे अप्रिशिएट किया होगा। इस तरीके से आप लोग दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच जो खींचतान चल रही थी, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल होता रहा था पिछले दिनों, लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो एक हीटअप माहौल था उसमें कहीं टोन डाउन होगी बात? और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग के बाद में जो है हम दोनों के बीच में रास्ता जो है, जो पहले भी बहुत अच्छा था, वो और अच्छा बनेगा। मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि आपसे पीएम को रिपोर्ट देने को कहा है इस पूरे मीटिंग पर। ये क्या मतलब? कह दिया कि पीएम के पास टाइम नहीं है, ये आ रहा है। ये देखिए, अब ऐसा है कि वो कुछ हो सकता है कि क्योंकि जब बातचीत जब चल रही होती है लंबी, तो उसमें कई इस प्रकार की बातें होती हैं और उसमें कई बार ध्यान बंट जाता है, तो बात की जो असल बात होती है वो आदमी को याद नहीं रहती। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है दिल्ली, हाँ अब मैं आपको बताता हूं। ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस जो है कार्य जो वो कर रही है वो अपने हिसाब से नहीं कर रही है, और सवाल ये था कि क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के साथ में अगर काम करे तो शायद काम बढ़िया होगा। अब देखिए, उसके बारे में मेरे विचार, देखिए राजनीतिक मुद्दा है कि दिल्ली पुलिस पर किसका कंट्रोल होगा, ये भीमसेन बस्सी इसको कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। पर चूंकि भीमसेन बस्सी जो है एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, जिसने इस पुलिस प्रोफेशन को इतने लंबे समय तक देखा है, जिसको सौभाग्य मिला है दिल्ली की जनता की सेवा करने का, तो भीमसेन बस्सी अपनी पर्सनल राय दे सकता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है ये एक बहुत उम्दा सिस्टम है। ये दिल्ली के जनता की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि दिल्ली के अंदर में एक बहुत जिसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट पुलिस मशीनरी काम करती है, जो रोष के साथ या भय के साथ या द्वेष के साथ या किसी घबराहट के साथ अपना काम नहीं करती है। ये दिल्ली पुलिस हर काम कानून के मुताबिक करती है। और मैंने ये कहा था कि देखिए साहब, वो मैं आपको बताऊं, देखिए दिल्ली के अंदर में माननीय जो सीएम हैं या दिल्ली के अंदर में जो माननीय मिनिस्टर्स हैं, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी राय है, दिल्ली के अंदर में जो माननीय एमएलए हैं, इनके जो है इनके प्रति लोगों की बहुत ज्यादा लोकल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये दिल्ली की लोकल समस्याओं के अंदर में बहुत उलझे हुए हैं। दिल्ली की लोकल समस्याओं के अंदर में उलझे होने के कारण इनके दिल में मतलब जो भी इस प्रकार का व्यक्ति है, जैसे मैं दिल्ली का हूं, तो दिल्ली का व्यक्ति होने के कारण मेरे दिल में भी कुछ ना कुछ हमेशा मेरी जजमेंट, एटलीस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कलर्ड। पर जो मैंने ये कहा कि ये दिल्ली की खुशकिस्मती है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है उसका दिल्ली में कभी कोई लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। दिल्ली का जो भी गृह मंत्री होता है उसका दिल्ली के अंदर में कोई लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए जो भी दिल्ली को चलाया जाता है, दिल्ली पुलिस को चलाया जाता है, एक निष्पक्ष तरीके से चलाया जाता है। ना मुझे कभी प्रेशर आया है
आया था, ना कभी प्रेशर आ रहा है। मैंने पिछली सरकार के साथ भी काम किया है, इस सरकार के साथ में भी मैं काम कर रहा हूं। ना पहले कभी प्रेशर आया था, ना प्रेशर आ रहा है। जो हम समझते हैं कि लेजिटिमेटली राइट है वो हम करते हैं, सरकार को बताते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने उनको एग्जांपल दी कि कौन सी सरकार क्राइम की फिगर्स को इतना बढ़ने के लिए मान जाएगी। हमारा क्राइम 54,000 से 1.5 लाख हो गया, भारत सरकार ने हमें शाबाशी दी है। अगर कोई लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वाली सरकार होती जिसको 15% या 20% या 30% की फिगर होती तो वो कभी ना कहती हमारे को आप सच्चाई के साथ में केसेस को दर्ज करें। फिर उनको मैंने ये भी बताया कि अगर तोमर साहब को गिरफ्तार किया गया या अगर दूसरे किसी एमएलए को गिरफ्तार किया गया, ना मुझे किसी ने कहा और ना ही मुझे किसी ने बाद में पूछा कि आपने क्या किया। मैंने ये कहा है कि ये खुशकिस्मती है दिल्ली की कि दिल्ली के अंदर में एक निष्पक्ष पुलिसिंग सिस्टम है।